हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। As we have been discussing the case scenarios that have been given by the institute for the May November 23 examinations, let us continue with case scenario 25. Mr. Rajat is a diamond merchant. During the year 22-23, he has turnover of 20 crores and net profit of 60 lakhs after taking into account all the permissible deductions. He has invested in shares of various private limited companies from which dividend of 12 lakh is receivable by him. He has two house properties in India, both of which were self-occupied. On one of the properties, he had taken a loan of 50 lakhs on which interest payable was 250, out of which he had paid 180. छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अलग अलग हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं. Let us read the case first and then we'll move on to the solution. On his birthday, he received jewelry from his friend. FMV was 5 lakhs. बर्थडे है, मैरिज होता तो क्या हो जाता, एग्जेम्प्ट हो जाता है ना. He had also withdrawn cash of 1.2 crores during the previous year 22-23 in aggregate from his current account maintained with ABC Bank. ठीक है. Further, he also withdrew 50 lakhs from a cooperative bank in October 22. He is regularly filing his return of income. So we understood, as I always say in all the case scenario videos, जब आप पढ़ते जा रहे हो कोशिश करो दिमाग में मतलब आपकी प्रोविजंस घूमते रहे. तो ये 194N की बात हो रहा है ना. हमने 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉ किया है तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन. एंड ऑल्सो इफ द individual, like the assessee, basically has not filed his return of income, then that case the limit is reduced to 20 lakhs. वहीं से आपका टैक्स डिडक्ट होना शुरू हो जाता है, राइट. सो यहाँ पर रेगुलरली फाइलिंग इज रिटर्न ऑफ इनकम है, ठीक है. तो हमारे ऊपर 1 करोड़ वाला ही केस लगेगा. हिज ब्रदर मिस्टर राहुल हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर लास्ट 5 years, ठीक है. इवन दो हिज इनकम एक्सीडेड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. He withdrew 50 lakhs from a cooperative bank account in March 23. ठीक है. Also, Mr. Rajat holds, again, this is also related to this point, same point, right? Rajat holds 20% voting power in XYZ Private Limited, a closely held company, and engaged in diamond manufacturing, okay, from which he has obtained loan of 10 lakhs. The company had free reserves of 8 lakhs as on 31st of March. So this takes us to 222E, है ना, deemed dividend. चलिए एक एक करके चलते हैं. From the following, choose the most appropriate answer. First, which of the following statement is correct in respect of loan of 10 lakhs obtained by Mr. Rajat? सो 222E में क्लियरली कहा गया है, अगर कोई शेयर होल्डर है जिसका 10% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर है और अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी है जिससे उसे लोन दिया जाता है, तो देन टू द एक्सटेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स द कंपनी हैज, दैट लोन शैल बी डीम्ड टू बी डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर. तो 8 लाख आपके हाथ में क्या मान लिए जाएंगे, डीम्ड डिविडेंड. पूरा 10 नहीं, क्योंकि रिजर्व्स 8 लाख के ही है, तो भले 10 लाख का लोन है बट डीम्ड डिविडेंड सिर्फ कितना माना जाएगा, 8 लाख. So 8 lakhs will be taxable as deemed dividend. 25.1B correct. चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखें. Would cash withdrawals by Mr. Rajat attract deduction of tax at source? So as I mentioned, this talks about 194N. When you are talking about 194N, we need to keep in mind that there are two different sections that will be applicable in this given case. Those two different cases, section 194N के two different cases shall be applicable in the given case. That is, one in case of Rajat and the second one in case of his brother. So let us also open the section together ताकि हमें दोनों चीजें साथ के साथ ही हम कंपेयर कर सके, which I already told you कि 1 करोड़ और 20 लाख दोनों अलग अलग हमारे ऊपर लिमिट्स एप्लीकेबल रहेंगी in different situations. So let us open. So see, 1 करोड़ से ऊपर अगर हमने विड्रॉ करा है तो then the tax has to be deducted at the rate of 2% of such sum. However,
persons who have not furnished return of income for the last 3 years, तो लिमिट 20 लाख की हो जाएगी। तो 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के अंदर 2%, और उसके ऊपर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 5% से आपको टैक्स डिडक्ट करना है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ध्यान रखना कि जब हम लिमिट्स याद रखते हैं, मोर और लेस हमको बहुत बार याद रहता है 1 करोड़ की लिमिट है, बट एग्जैक्ट 1 करोड़ के विड्रॉल पे क्या होगा या एग्जैक्ट 20 लाख के विड्रॉल पे क्या होगा, वो भी आपको हर टीडीएस के सेक्शन में ध्यान देना रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इट टॉक्स अबाउट कैश एक्सीडिंग 1 करोड़। ओके, तो हमारे केस में अगर हमारा एग्जैक्ट 1 करोड़ है तो फिर वहां पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। और सिमिलरली जो इनका भाई है, क्योंकि उन्होंने 5 साल से टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वहां पर आपका 20 लाख का ही लिमिट अप्लाई हो जाएगा। तो मिस्टर रजत के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर जितना विड्रॉल है उस पर टीडीएस लगेगा, लेकिन जो 50 लाख उसने कोऑपरेटिव बैंक से विड्रॉ किया है उस पर टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, बिकॉज द अमाउंट इज विद इन द लिमिट ऑफ 1 करोड़। सो 25.2 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन द 20 lakhs। ऑल्सो द टैक्स इज डिडक्टेड नॉट ऑन द फुल अमाउंट ऑफ विड्रॉल, इट इज डिडक्टेड ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, राइट। तो 1 करोड़ पे टैक्स नहीं कटेगा, तो 20 लाख पर आपका 2% से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। चलिए, लगा ही था अगला क्वेश्चन वही होगा मुझे मिस्टर राहुल, इसलिए हमने सेक्शन दोनों के हिसाब से देख लिया। प्रीवियस ईयर अट्रैक्ट डिडक्शन एट सोर्स, तो हमने अभी देखा ही हैज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम। उसने कितना 50 लाख विड्रॉ किया है ना उसने भी, हाँ, तो 20 लाख से एक्टिवेट हो गई। तो जितना भी एक्सेस है उस पे 2% से, और अगर इसका 1 करोड़ के ऊपर होता तो 2 और 5 दोनों केसेस अप्लाई हो जाते। सो ऑन द एक्सेस 30 lakhs, you have the cooperative bank shall deduct tax at the rate of 2%. What is the total income of Mr. Rajat, assuming he has not opted for section 115 BAC? Okay, मतलब सारे deductions वगैरह उसको मिल जाएंगे। Let us discuss. First is he has turnover and net profit of 60 lakhs. तो एक एक हेड करके चलते हैं, सैलरी तो है नहीं कुछ, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन शायद नहीं है बट फिर भी लिख लेते हैं, है ना। 60 lakhs का प्रॉफिट है पीजीबीपी का, डिविडेंड है 12 लाख का अदर सोर्सेज में जाएगा। 2 हाउस प्रॉपर्टीज है, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्योंकि बीएससी में नहीं जा रहा है तो डिडक्शन मिल जाएगा, however up to 2 lakhs। and also we have to keep in mind that interest under section 24B is allowed on accrual basis। okay, so ये 1 लाख एक्चुअली पे हुआ है बट आपको डिडक्शन पूरा 2 लाख का मिल जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस है 2 लाख का। देन ऑन हिज बर्थडे ही हैज रिसीव्ड ज्वेलरी, बर्थडे है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, 50,000 के ऊपर है, नॉन रिलेटिव है, तो 5 lakhs विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। ही हैज आल्सो विथड्रॉ 50 lakhs, ये तो ठीक है, इनकम कुछ नहीं है, और ये डीम्ड डिविडेंड का 8 लाख। सो दिस विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम। ओके, हमें लोन के ऊपर प्रिंसिपल के बारे में भी कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बिकॉज डिडक्शंस की इन्फॉर्मेशन हमें कुछ भी नहीं दिया है। सो इसी के बेसिस पे निकालते हैं। 72 + 5 + 8 - 2, 83 lakhs देख लेते हैं। 25.4 83 lakhs, तो ये हो गई हमारी टोटल इनकम। सिंपल है, केस इज कंपैरेटिवली क्वाइट सिंपल, बट अगेन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे हैव इंटीग्रेटेड वेरियस डिफरेंट थिंग्स। हेड्स ऑफ इनकम को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया है ना, डीम डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट भी ले लिया, फिर टीडीएस भी इंक्लूड कर लिया। तो मोर और लेस हर केस सिनेरियो में आपको एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, दैट यू नीड टू इंटीग्रेट डिफरेंट प्रोविजंस टुगेदर, राइट। एज आई ऑलवेज से इन क्लास एज वेल, कि जब प्रैक्टिकली भी आप केसेस देखते हैं, ऑफिस में देखेंगे या आपके मतलब आगे चल करके आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे आपके क्लाइंट्स को, तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो आपके पास सिर्फ पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेशन के लिए आएगा। वो जब आप उसको ऑडिट कर रहे हैं, या आप उसको टैक्स का उसका कंप्लायंस चेक कर रहे हैं, या आप उसका रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या whatever you are conducting your tax audit, you have to think from all the aspects कि अगर उसने कोई कैश या उसने कोई भी पेमेंट किया है तो वो पेमेंट कैश में तो नहीं है, तो एक डिसअलाउ तो नहीं होगा। उस पर टीडीएस डिडक्ट करना था तो वो किया है कि नहीं, डिडक्ट करके पे किया है कि नहीं, क्या वो एक्सपेंस सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। लाइक व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग यू हैव टू सी ऑल द एंगल्स, राइट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। सो इसीलिए केस सिनेरियोस आपको वो चीजें करने में हेल्प करते हैं। लास्ट वन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रजत, तो मतलब टीडीएस वगैरह एडजस्ट करने से पहले का देखना है। 83 lakhs बीएससी इसने ऑप्ट नहीं किया है तो सीधे नॉर्मल रेट से लगा देते हैं। 83 लाख में से 10 लाख हटाए, 30%। सीनियर सिटीजन वगैरह कुछ नहीं दिया है ना क्वेश्चन में, वो भी ध्यान रखना है आपको,
है ना, कि कहीं कुछ ऐसा छोटा सा हिडन लिखा होता है कभी कभी कि ही लास्ट, जैसे यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट वो दे सकते थे कंफ्यूज करने के लिए कि ऑन हिज 61st बर्थडे, तो वहां पर आपको ध्यान देना एकदम से कि अरे सीनियर सिटीजन का केस है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना, तो यहाँ कुछ नहीं बोला है तो वी कैन कैलकुलेट इट एज पर द रेगुलर रूल्स। तो हमारा 83 लाख में से 10 लाख मैंने घटा दिया, इस पे 30% प्लस 112500, तो 23,02,500 का सिर्फ टैक्स है। नाउ एज द इनकम एक्सीड्स 50 lakhs, आपको सरचार्ज भी कैलकुलेट करना है। अगेन सरचार्ज के लिए भी इजी है केस, नहीं तो डिविडेंड और वो दोनों चीजें हैं तो वो हमें उधर भी एडजस्टमेंट दे सकते थे कि नॉर्मली तो आपके ऊपर हायर रेट पे लग रहा है बट डिविडेंड इनकम पे आपको कम रेट लगाना है एंड ऑल दोस थिंग्स लाइक दे हैड गिवन इन एन आरटीपी इन द लास्ट अटेम्प्ट। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ सरचार्ज। सो ये टैक्स हो गया, तो सीधे सीधे इस पे 10% का लगा देते हैं सरचार्ज। रिलीफ आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं बट देयर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि 83 lakhs पे रिलीफ मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ, है ना, तो वो आप एक बार आपके रेफरेंस के लिए यू कैन जस्ट ट्राई बट इट विल नॉट बी अवेलेबल। 4% और जोड़ देते हैं सेस, 10% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस, 2634,060. This is the total tax that has to be paid by the assessee. So Mr. Rajat, the gross liability, अगेन अगर यहाँ नेट होता तो फिर आप इसके अगेंस्ट आपका टीडीएस या जो भी आपका और डिडक्ट हुआ है वो भी आप यहाँ पर डिडक्ट कर लेते हैं, बट ठीक है, दैट इज not required, so we'll be calculating the gross tax liability. So these are the answers that have been given in the case scenario 25. Comparatively quite easy question. हमने अभी तक कितने सारे जो केसेस करे तो थोड़ा एक वो है, बट फिर भी इसमें थोड़े से अनयूजुअल एडजस्टमेंट ज्यादा है जो हम नॉर्मली बहुत बार इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है अदर सोर्सेज है, सिंपल है। सो वहां पर भी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गो थ्रू ऑल द केसेस, आई विल बी डिस्कसिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, मोस्टली जिनके भी मुझे लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है आई विल ट्राई कि हम पूरे ही सारे डिस्कस करें। So go all through the case scenario on your own, and if you have any other issues or doubts, feel free to contact.